Assalam, Assalamu alaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the online lecture of Mathematics Grade Pre-9, Unit number 4, Algebraic Expression and Algebraic Formulas. This is the third lecture of this unit, and in this lecture we will cover the first half of exercise 4.2. First of all, students, open your books and your maths classwork registers and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now students, open page number 83. On page number 83 you have some algebraic formulas. The first formula is a plus b whole square plus a minus b whole square equal to into a square plus b square. The first formula is when you're adding two things like a plus b whole square and then a minus b whole square, you got the answer a 2 into a square plus b square. The second is a plus b whole square minus a minus b whole square equal 4ab. First of all, students, you have to learn these formulas. If you can't learn this formula, you can't able to solve the exercises. The first task is to learn these formulas. Now on page number 83 you have an example. If a plus b equals 7 and a minus b equal 3, then find the value of a part is a square plus b square. अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और आपने वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन दोनों फॉर्मूलाज में से आप कौन से वाला चूज करेंगे? अब देखें, दोनों फॉर्मूलाज में a प्लस बी भी है, a माइनस बी है, लेकिन प्लस वाले में आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी और नीचे वाले में आपके पास 4ab. लेकिन अब हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए मैं प्लस वाला फॉर्मूला लगाऊंगी. सोल्यूशन हम क्या करेंगे कि हम पहले जो हमें गिवन डाटा है वो लिखेंगे और उसके बाद हम कहेंगे कि हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगी? फर्स्ट वाला. अब मैं इसमें वैल्यूज लगा दूंगी. a प्लस बी मेरे पास 7 है, तो इट्स मीन 7 स्क्वायर प्लस a माइनस बी मेरे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब स्क्वायर्स ओपन कर लेंगे. 49 प्लस 9 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब सिंप्लीफाई कर लेंगे. 58 आ जाएगा. 49 प्लस 9 58 इक्वल टू इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब 59, अब ये हमारे पास वैल्यू आई है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. देखिए मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके 2 क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी. नेक्स्ट हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 29. सो दिस इज द आंसर. नाउ द b पार्ट इज ab. फाइंड आउट b पार्ट. We use the formula, the second formula. A plus b whole square minus a minus b whole square equal 4ab. To find out the value of ab, we can use this formula. So put the values. The previous values a plus b equal 7, a minus b equal 3. So put the values. Do the same thing. Now you have to take away 49 minus 9. It gives you the answer 40. And then 4ab equal 40. Now you have to divide. ab equal 40 divided by 4. It gives you the answer ab equal 10. So this is the answer. Now students, open page number 84. On page number 84 you have the next formula, that is a plus b whole square. You already know how to find out what's the identity of a plus b whole square. Now you have 3. So the formula is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. अगेन आपको ये वाली जो आइडेंटिटी है वो लर्न करनी पड़ेगी. अब एग्जाम्पल आपके पास है. इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल 43, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर. a प्लस b, सॉरी, प्लस c.
अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, मतलब इस पार्ट की वैल्यू गिवन है, और उन्होंने आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की गिवन दी है 3, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। हम अगर, और हमने फाइंड किसकी करनी है, इसकी। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले आपको पता है कि आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी। फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैं 2 को यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो वो दो तीनों में है तो वो बाहर आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैं वैल्यूज पुट कर देती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 43। मैं उसकी जगह पे क्या लगा देती हूँ, 43, और 2 ये, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3। मैं वैल्यूज लगा देती हूँ। अब नेक्स्ट मैं इनको सिंप्लीफाई करती हूँ, 43 प्लस 6 इनको ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास 49 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स लुक, आपने वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये वैल्यू आपके पास स्क्वायर की है, तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो 2 जो उसकी पावर 2 है वो कैंसिल हो जाएगी, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है आपको पता है, 7 का। सो आप साथ में प्लस माइनस 7, प्लस माइनस 7 इसलिए आया क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हमारे पास प्लस वैल्यू भी आती है और माइनस वैल्यू भी आती है, तो उसको हम इकट्ठा लिख देंगे तो प्लस माइनस 7। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, if a plus b plus c equals 6 and a square plus b square plus c square equal 24, then find the value of ab plus bc plus ca। वही वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब फिर से आपको वही, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, वैल्यूज लगा देंगे, 2 को फिर हम कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 प्लस 2 इंटू, अब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जो बाकी चीजें उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 36 इक्वल 24 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 24 को मैं उधर ले जाऊंगी तो 24 मेरे पास वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 24, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 12 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब वो जब डिवाइड होगा तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ गई, 6। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, if a plus b plus c equals 7 and ab plus bc plus ca equal 9, then find the value of a square plus b square plus c square। Now again use the same identity। अब आपको जिस जिस की वैल्यू पता है आप उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब फिर से आप 2 को कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 2 के साथ वैल्यू गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू गिवन है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। अब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, 49 इक्वल दिस प्लस 18। अब मैं 18 को उधर ले जाऊंगी तो 18 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस, तो 49 माइनस 18 मेरे पास आंसर आ जाएगा 31। सो दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स ओपन एक्सरसाइज 4.2। The first question of your exercise is, if a plus b equal 10, a minus b equal 6, then find the value of the a part is a square plus b square. So guess which identity we have to use? Yes students, the first one we use, and the both are adding. Yes, this one. Now put the values. So you get 10 square plus 6 square equal to into a square plus b square. Simplify them, 100 plus 36. Add them. So now you have to divide with 2. So a square plus b square equal 136 divided by 2. So a square plus b square equal 68. Now students, the next question number 2.
if a square plus b square plus c square equal 45, a plus b plus c equal -1, then find the value of ab plus bc plus ca. First of all, you have to identify which identity you have to put. Yes, you have to put this identity. बिकॉज देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो अभी तक जो आपने 3 वेरिएबल्स की जो आइडेंटिटी लर्न की है वो जस्ट ये है. सो इट्स मीन आपको देखने से ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी हमने चूज करनी है. अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. -1 स्क्वायर इक्वल 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. When you take the square of -1, it gives you the answer 1. So 1 equal 45. Then you move 45 to the other side, then it will be -1 minus 45 equal 2 into AB plus BC plus CA. So it gives you the answer -44. अब हम 2 को हम जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहां पे 2 जाके डिवाइड हो जाएगा. So -44 divided by 2, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -22. So this is the answer. Now students, you have a homework. Do question number 1, part 2, 3, question number 3, question number 4, question number 5 of exercise 4.2 on your maths homework register. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.